एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, दैट इज पॉलीहाइड्रोएमनियोस। एनाटॉमिकली पॉलीहाइड्रोएमनियोस बेसिकली होता है क्या है, इट इज डिफाइंड एज द लिक्वर एमनाई। जब आपका 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है तब उसे कहते हैं। क्लिनिकल डिफिनेशन अगर देखें तो एक्सेसिव एक्लूमेशन ऑफ द लिक्वर एमनाई causing discomfort to the patient, or when the imaging help is needed to substantiate the clinical diagnosis of the lie or the presentation of the fetus. Sonographic diagnosis is based on when the amniotic fluid जो AFI होता है हमारा amniotic fluid index, वो तुम्हारा more than 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा जब आता है तब हम बोल से दैट इज मोर देन 95 परसेंटाइल फॉर द जेस्टेशन। डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट DVP मोर देन 8 सेंटीमीटर जब होगी, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट अगर उसकी 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर उसका 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा सोनोग्राफी में, तब इसे हम बेसिकली पॉलीहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं इस केस को। ठीक है। इंसिडेंस बिकॉज ऑफ द different criteria used in the definition of the polyhydroamnios, the incidence varies from 1 to 2%. ठीक है। It is more common in the multipara में ज़्यादा common होता है than the primigravida, when the minor degree of the hydroamnios are fairly common. Hydroamnios sufficient to produce clinical symptoms probably occur in 1 in 1000 pregnancies. Etiology क्या होता है, क्यों होता है ये? Because of the wide gap in the knowledge of the origin and the excretion of the liquor amni. The exact cause of the excess accumulation of the liquor amni is still speculative. It may be result of the deficient absorption deficient, as well as excessive production of the liquor amni, which may be temporary or permanent. While the certain maternal and the fetal factors are found to be associated with the polyhydroamnios, are yet the cause remains unknown. In about 60% cases, the composition of the liquor amni, however, remains normal. Fetal anomalies, that is congenital fetal malformation की वजह से हो सकता है, that is structural chromosomal anomalies are associated with the polyhydroamnios 20% cases. Anencephaly हो जाता है, hydroamnios is found in association with the anencephaly about 50% cases. The excessive production of the liquor amni may be due to transudation from the exposed meninges, absence of the fetal swallowing reflex, and possible suppression of the fetal antidiuretic hormone leading to excessive urination. ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा पॉलीहाइड्रोएमनियोस तुम्हारा एनेंसेफली के केसेस में हो सकता है। एनेंसेफली में हाइड्रोएमनियोस 50% एसोसिएशन रहता ही रहता है। क्या होता है, ट्रांसुडेशन वहाँ पे जो एक्सपोज मेनिंजेस है उसमें बढ़ा हुआ है, फीटल सॉलोइंग रिफ्लेक्स बेसिकली एब्सेंट है, पॉसिबल सप्रेशन हो रखा है फीटल एंटीडायरेटिक हार्मोन का, जिसकी वजह से ADH अगर फीटल्स का कम है तो यूरिन बेसिकली उसकी बड़ी हुई होगी। ठीक है, इसकी वजह से अगेन पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा। दूसरी बात, वो सॉलो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन डेफिशिएंट है। ठीक है। ओपन स्पाइना बाइफिडा है, ओपन स्पाइना बाइफिडा है, इंक्रीज ट्रांसुडेशन होगा फ्रॉम द मेनिंजेस। ठीक, एसोफेजियल और ड्यूडेनल एट्रेसिया है, दैट इज प्रिवेंट swallowing of the liquor. However, hydroamnios is associated only in about 15% of the esophageal atresia. Facial cleft है, neck masses है by interfering normal swallowing, जो कि normal swallowing को interfere कर रही होगी. Hydrops fetalis due to rhesus isoimmunization or non-immune hydrops or cardiothoracic anomalies or fetal cirrhosis and fetal infections with the torch and the parvovirus B19 infection are often associated with the hydroamnios. Aneuploidy and the genetic syndrome. प्लासेंटा जो होता है बेसिकली हमारा कोरियो एंजियोमा ऑफ द प्लासेंटा हो सकता है वहाँ पे प्लासेंटा में, दैट इज ट्यूमर ग्रोइंग फ्रॉम द सिंगल वेलस कंसिस्टिंग ऑफ हाइपरप्लेजिया ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू रिजल्टिंग इन इंक्रीज ट्रांसुडेशन, जिसकी वजह से ट्रांसुडेशन बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बढ़ जाएगा तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा। Multiple pregnancy, that is multiple pregnancy is about 10 times more common than its overall incidence. Hydroamnios is more common in the monozygotic twins, usually affecting the second sac. In the TTTS, the recipient twin develops polyhydroamnios. Maternal में देखें तो जो
डायबिटीज़ होता है वो एक कारण हो सकता है. इट इज़ more common in the hydroamnios, and hydroamnios is associated with the diabetes in about 30% cases. ठीक है. However, adequate supervision and incidence of the hydroamnios can be lowered. It is presumed that the raised maternal blood sugar, जब maternal blood sugar बढ़ा रहेगा, there is raised fetal blood sugar, जिसकी वजह से fetal diuresis होगी, हाइड्रोएमनियोस हो जाएगा. ये कारण हो सकता है तुम्हारा डायबिटीज़ में पॉलीहाइड्रोएमनियोस होने का. क्या बच्चे जो मदर है, ठीक है, वहाँ पे आपका ब्लड शुगर बढ़ा है, मदर में बढ़ा होगा तो फीटस में भी बढ़ा होगा. फीटस में बढ़ा होगा तो उस शुगर को निकालने के लिए फीटस डायरेसिस करेगा, मोर एंड मोर हाइड्रोएमनियोस होगा फिर. ठीक है. कार्डियक और रीनल डिजीज हो सकती है, may lead to edema of the placenta leading to increased in translation. द इडियोपैथिक 50 to 60% वो इडियोपैथिक ही होता है, पता नहीं होता है. Clinical type depending upon the rapidity of the onset and the hydroamnios can be chronic. Most common onset is insidious, taking few weeks. Acute extremely rare. Onset is sudden within few days or may appear acutely on pre-existing chronic variety. The chronic variety is 10 times more common than the acute one. क्रोनिक 10 गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्यूट वन. ठीक है. पॉलीहाइड्रोएमनियोस में भी माइल्ड हो सकता है. डीवीपी मोर देन 8 to 11 सेंटीमीटर. ठीक है. तो वो तुम्हारा 8 से 11 होगा तो माइल्ड है. ठीक है. डीवीपी अगर 12 से 15 आ रहा है यूएसजी पे तो तुम्हारा ये मॉडरेट है. और सीवियर हो जाता है अगर डीवीपी मोर देन इक्वल टू 16 आ रहा होगा. ठीक है. क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इसी के होते हैं. इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द लिक्वर इज ग्रेजुअल, एज सच द पेशेंट इज नॉट वेरी मच इनकन्वीनियंस and the symptoms are mainly from the mechanical causes, that is respiratory. The patient may suffer from the dyspnea or may even remain in the sitting position for easier breathing. Palpitation हो सकते हैं, edema of the leg, varicosities in the legs and the vulva and hemorrhoid हो सकता है. ठीक है. साइंस क्या होते हैं, पेशेंट में भी इन द डिस्पनिक स्टेट इन लाइंग डाउन पोजीशन, लेटे हुए उस डिस्पनिया हो रहा है, साइन हो गया. ठीक है. एविडेंस ऑफ द प्रीक्लैम्सिया, दैट इज एडिमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, प्रोटीनूरिया, वैसे प्रेजेंट हो सकता है. एब्डोमेन एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन करोगे तो एब्डोमेन मार्कली एनलार्ज मिलेगा. लुक्स ग्लोबुलर विद द फुलनेस एट द फ्लैंक्स एंड द स्किन इज टेंस शाइनी विद लार्ज स्ट्राया. ठीक है. Palpation पे height of the uterus more than the period of the amenorrhea, and girth of the abdomen round the umbilicus is more than the normal. Fluid cell can be elicited in all directions over the uterus. ठीक है. Abdominal girth around the umbilicus more than normal. Normal से ज़्यादा होगी abdominal girth. ठीक है. फिर इसके बाद क्या है, फीटल पार्ट्स कैन नॉट बी वेल डिफाइंड. फीटल पार्ट्स को आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं. सो ऑल्सो द प्रेजेंटेशन और द पोजिशन. द एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट कैन बी एलिसिटेड. एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट आप एलिसिट कर पाओगे ईजिली. ठीक है. ऑस्कल्टेशन पे क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड जो होंगे उन्हें नॉट हर्ड, दे आर नॉट हर्ड डिस्टिंक्टली, अलग से नहीं सुनाई पड़ते. ऑल्दो इट्स प्रेजेंस कैन बी पिक्ड अप बाय द ड्रॉपलर साउंड. ड्रॉपलर साउंड उसकी साउंड पिकअप कर लेगा. ठीक है. The internal examination, that is cervix, is pulled up. cervix ऊपर आ जाती है थोड़ी, may be partially taken up or at times dilated or to admit a finger, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर है, बहुत ज़्यादा बल्जिंग है. ठीक है. cervix थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी और कभी कभी वो हो सकता है समझ ही ना आए, बहुत ज़्यादा डायलेटेड है और एक फिंगर टिप एडमिट कर सकते हैं. ठीक है. थ्रू विच टेंस बल्ज मेम्ब्रेन्स कैन बी फिल्ड, वहाँ पे टेंस बल्जिंग मेम्ब्रेन तुम फील भी कर सकते हो. ठीक है. सोनोग्राफी इज हेल्पफुल टू डिटेक्ट द एबनॉर्मली लार्ज इको फ्री स्पेस बिटवीन द फीटस एंड द यूट्राइन बॉल, दैट इज लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट मोर देन 8 सेंटीमीटर. ठीक है. एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मोर देन 25 सेंटीमीटर टू एक्सक्लूड द मल्टीपल फीटसेस, टू नोट द lie and the presentation of the fetus. ठीक है. Diagnosis, any fetal congenital malformation, especially the CNS, gastrointestinal system and the musculoskeletal system. Blood में क्या है, ABO blood grouping and RH grouping. Rhesus isoimmunization may cause hydrops fetalis and the fetal ascites.
पोस्टपेरेंडियल शुगर बढ़ी हुई आएगी आफ्टर ईटिंग। इफ नेसेसरी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना है, ठीक है। एमनियोटिक estimation of the alpha fetoprotein which is markedly elevated in the presence of the fetus with an open neural tube defect, ठीक। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ट्विंस, ठीक है, हो सकते हैं। वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है विद द ह्यूज ओवेरियन सिस्ट एंड द मैटरनल एसाइटिस ट्विंस। दैट डायग्नोसिस is often confused and difficult because of its association with the hydroamnios. The abdomen markedly enlarged and too many fetal parts. Fluid thrill absent and the straight X-ray or sonography confirms the diagnosis. प्रेगनेंसी विद द ह्यूज ओवेरियन सिस्ट होता है, उसके साथ प्रेगनेंसी होती है, तब भी जो यूट्रस है वो बहुत बड़ा आएगा। द ग्रेविड यूट्रस कैन बी फेल्ट सेपरेट फ्रॉम द सिस्ट एंड द इंटरनल एग्जामिनेशन shows the cervix to be pushed down into the pelvis. In hydroamnios, the lower segment has to ride above the pelvic brim so that the cervix is drawn up, ठीक है। जब तुम इसमें कंफ्यूज हो, क्या बोलते हैं, कि प्रेगनेंसी है ह्यूज ओवेरियन सिस्ट के साथ, तो तुम्हें ग्रेविड यूट्रस उसको देखना पड़ेगा, वो एकदम सेपरेट होता है सिस्ट से, ठीक है। जब इंटरनल एग्जामिनेशन तुम करोगे वहाँ पे, तो बेसिकली सर्विक्स पुश्ड डाउन होता है इनटू द पेल्विस, क्योंकि सिस्ट तो ऊपर होगा, तो सर्विक्स तुम्हारा और डाउन हो जाएगा। इन हाइड्रोएमिनियोस जो लोअर सेगमेंट है वो राइड अबव द पेल्विक ब्रिम हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ताकि सर्विक्स और खींच पाए और बड़ा हो पाए, ठीक है। एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन इन द सोनोग्राफी इज हेल्पफुल। मैटरनल एसाइटिस दैट इज प्रेजेंस ऑफ द शिफ्टिंग डलनेस। मैटरनल एसाइटिस भी हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यही है, ट्विन प्रेगनेंसी हो गया, सिस्ट हो गया, मैटरनल एसाइटिस हो गया। एसाइटिस में कैसे समझोगे, शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट है, रेजोनेंस ऑफ द मिडलाइन ड्यू टू फ्लोटिंग गट, whereas in the hydroamnios it becomes dull. इंटरनल एग्जामिनेशन फ्लोटिंग गट की वजह से मिडलाइन में तुम्हें रेजोनेंस मिलेगी। हाइड्रोएमिनोस हो जाएगा तो वो सब डल हो जाता है। इंटरनल एग्जामिनेशन करोगे, पैल्पेशन of the normal size of the uterus if possible can give clue. A straight X-ray of the abdomen in the sonography helps in exclude the pregnancy. The complication of the hydroamnios are grouped. मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हाइड्रोएमिनियोस के, फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मैटरनल में क्या होगा, प्री-एक्लेम्पसिया होगा, मैल प्रेजेंटेशन होगा, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ द फ्लोटिंग हेड, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, प्रीटर्म लेबर इधर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस हो सकता है, accidental hemorrhage due to decrease in the surface of the area of the emptying uterus beneath the placenta following the sudden escape of the liquor amni during the labor। ये तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। ओवरऑल देन ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पे क्या हो सकता है, अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो गया, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, यूट्राइन इनर्शिया हो गया, ठीक है। इंक्रीज ऑपरेटिव डिलीवरी ड्यू टू मैल प्रेजेंटेशन, retained placenta, postpartum hemorrhage, shock, postpartum hemorrhage due to uterine atony, purpurium में sub involution and increased morbidity due to infection resulting from the increased operative interference and the blood loss. देखें, there is increased perinatal mortality due to extent of about 50% and the death is mostly due to प्रीमेच्योरिटी। डेथ जो होती है वो ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी होती है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हो गई। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सच एज कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, हाइड्रोस फिटालिस अफेक्ट्स द इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरी एंड एक्सीडेंटल हेमरेज, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द हाइड्रोएमिनियोस, देयर हैज बीन फॉलिंग ट्रेंड इन द इंसिडेंस ऑफ द हाइड्रोएमिनियोस सीवियर मैग्नीट्यूड। The reason are that is early detection and control of diabetes, rhesus immunization is now preventable, genetic counseling in early months and the detection of the fetal congenital abnormalities and with the ultrasound and their termination reduce their number in the late pregnancy. Treatment of the polyhydramnios is usually tailored according to the underlying cause. Mild polyhydramnios that is DVP 8 से 11 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इस कॉमनली फाउंड इन द मिड ट्राइमेस्टर, यूजुअली रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा बेड रेस्ट फॉर फ्यू डेज
and excessive liquor is expected to be diminished as the pregnancy advances. It is transient. Severe polyhydramnios, that is DVP 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तब, in the view of the risk involved and high perinatal mortality rate, the patient should be shifted in the hospital equipped to deal with the high risk patient. प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली हमें रिलीव करना है सिम्टम्स को और फाइंड आउट करना है कॉज को, तो अवॉइड एंड डील विद द कॉम्प्लिकेशन. पॉलीहाइड्रोमिनियस में भी ट्रांजिएंट वेयर वो ट्रांजिएंट हो सकता है जब LVP रिटर्न टू द नॉर्मल विद द प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है. और परसिस्टेंट केस हो सकता है विद द परसिस्टेंट पॉलीहाइड्रोमिनियस नीड इन्वेस्टिगेशन फॉर द कंजेनाइटल फीटल एनोमलीज एंड द जेनेटिक सिंड्रोम. ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा. एंड ऑल्सो नीड क्लोज मॉनिटरिंग. सपोर्टिव थेरेपी देनी है, बेड रेस्ट कराना है पेशेंट को इफ नेसेसरी विद द back rest and the treatment of associated condition like preeclampsia, diabetes on usual line. The use of the diuretic is of little value. Diuretic use करने का कोई खास मतलब नहीं है. Sulindac, that is COX-2 inhibitor होता है 200 mg हर 12 घंटे पे देना है. Under the supervision has been found to be most effective in unexplained cases. It has been found to decrease the amniotic fluid as it reduces the fetal urine output. जो ये एक ड्रग है दैट इज सुलिनडैक, COX-2 इनहिबिटर होती है, 200 mg में चलानी है. ठीक है, हर 12 घंटे में, 12 घंटे बाद फिर से उसको दे दो. ये तुम्हारा एमनियोटिक फ्लूइड को डिक्रीज कर देगा. ठीक है, ये हम दे देंगे जिसकी ये एमनियोटिक फ्लूइड को डिक्रीज कैसे करेगा, फीटल यूरिन आउटपुट को कम करेगा. Investigations are done to exclude the congenital fetal malformation with available gadgets and also to detect such complication like the diabetes तो नहीं है, rhesus immunization तो नहीं, ये सब देख लेंगे. Further management depend upon the response to the treatment period of the gestation and the presence of the fetal malformation and associated complicating factor. ठीक है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट जो हमने दिया है दैट इज सुलिनडैक दिया है उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन उसका क्या है. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फीटल मैलफॉर्मेशन तो नहीं है कोई, और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं होने चाहिए. ठीक है, इन द अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस नो डेमोन्स्ट्रेटेबल फीटल मैलफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट आ जाता है. ठीक है, प्रेगनेंसी इज टू बी कंटिन्यूड अवेटिंग स्पॉन्टेनियस डिलीवरी एट द टाइम एंड अनरिस्पॉन्सिव विद द मैटरनल डिस्ट्रेस होती है. ठीक है, उनमें क्या करेंगे, उनमें प्रेगनेंसी अगर लेस देन 37 डेज है तो हम एन अटेम्प्ट टू मेड रिलीव द डिस्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश करें विद द होप ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय अमाइनो सिंथेसिस दैट अमाइनो रिडक्शन. अमाइनो सिंथेसिस कर देंगे, अमाइनो फ्लूइड को हम थोड़ा निकाल लेंगे, अमाइनो सिंथेसिस इसे बोलते हैं. 37 वीक से अगर कम है. ठीक है, स्लो डिकम्प्रेशन इज डन at the rate about 500 ml per hour and the amount of the fluid to be removed should be sufficient enough to relieve the mechanical distress. Normally amino drainage is stopped when AFI is less than 25 amniotic fluid index जब 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है हम अमाइनो ड्रेनेज को बंद कर देते हैं. बिकॉज ऑफ द स्लो डिकम्प्रेशन chance of accidental hemorrhage is less but the liquor amni may again accumulate for which procedure may have to be repeated. Amniotic fluid can be tested for the fetal lung maturity के लिए हम amniotic fluid को टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर more than 37 वीक है induction of the labor is done, labor induce करा दो. following the procedure may be helpful. अब देख लेते हैं स्कीमेटिक मैनेजमेंट क्या कहता है. हॉस्पिटलाइजेशन सबसे पहले करना है. ठीक है, उसका पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर चेक करेंगे, GGT HbA1c वगैरह सब करा लेंगे. ठीक है, सेरोलॉजी हो गया. ठीक है, फॉर द इन्फेक्शन. ठीक है, RBCs रेड सेल एंटीबॉडीज तो नहीं है. ABO कराएंगे, RH टारगेटेड USG फॉर द फीटल एनोमलीज एंड द जेनेटिक सिंड्रोम. ये सारी चीज़ें करा के हम देखेंगे कोई फीटस की एबनॉर्मलिटी है या नहीं है. अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो अलग गाइडलाइन है, अगर कोई फीटल की एबनॉर्मलिटी नहीं है तो हम चेक करेंगे कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है रिस्पॉन्सिव टू ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया हमने जो ये वाली ड्रग दी थी दैट इज सुलिनडैक.
सुलिंडैक 200 mg दिया था, ठीक है, हर 12 घंटे में, ठीक है। अगर इससे आराम मिल रही है रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट पे तो हम कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी को, मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर इफ एनी, ठीक है। डिलीवरी एट द टर्म फिर करा लेंगे। एंड फाइनली टू गार्ड अगेंस्ट द पीपीएच थ्रू द न्यूनेटल एग्जामिनेशन टू एक्सक्लूड द मेलफॉर्मेशन, ठीक है। अगर इन केस मैटरनल डिस्ट्रेस परसिस्टेंट था, प्रेजेंट था, तो और लेस देन 37 वीक्स है तो अमाइनो रिडक्शन किया रिपीटेड टिल द fetal amino reduction, that is amino synthesis कर रहे हैं, ठीक है। अगर 38 वीक से ऊपर है, ठीक है, तो 37 वीक तक की कहानी हो गई, ठीक है। मोर देन 37 वीक है तो फिर अमाइनो रिडक्शन करेंगे, करेक्शन ऑफ द लाई इफ नीडेड, स्टेबलाइजिंग ऑक्सीटोसिन ड्रिप देंगे, ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे जो कि कंट्रोल होना चाहिए, और फिर हम डिलीवरी करा देंगे, ठीक है, ठीक है। फीटल एबनॉर्मेलिटीज अगर प्रेजेंट है, रेफरल टू द मैटरनल फीटल मेडिसिन यूनिट, ठीक है। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एंड डिलीवरी इज द ऑप्शन, ठीक है। सर्वाइकल राइपनिंग एंड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराएंगे, फिर डिलीवरी कराएंगे अल्टीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अमाइनो सिंथेसिस जो होता है, ड्रेनेज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ द लिक्विड टू चेक द फेवरेबल lie presentation of the fetus, a stabilizing oxytocin infusion is started and low rupture of the membrane is done. When lie becomes stable and the presenting part gets fixed to the pelvis, this will minimize the sudden decompression and the separation of the placenta, change in the lie of the fetus, and the cord prolapse. With the congenital abnormality, referral to the maternal fetal medicine unit should ideally be done. अगर congenital fetal abnormality है तो maternal fetal medicine unit को हम basically referral एक भेज देंगे, ठीक है। And when decision for the termination is made, it is to be done irrespective of the duration of the pregnancy. अगर termination of pregnancy का decision हो गया है कि fetal abnormality हम सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जब करना ही है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे। अमाइनो सिंथेसिस इज डन टू ड्रेन द गुड अमाउंट ऑफ द लिक्विड, देयर आफ्टर द इंडक्शन बाय द वेजाइनल PGE2 gel insertion followed by low rupture of the membrane is done. If accidentally low rupture of the membrane occurs, escape gush of the liquor is immediately controlled by placing the palms over the introitus to avoid the accidental hemorrhage. The lie should be checked, and if found, longitudinal oxytocin infusion is started. During the labor, unusual management is followed outlined in the twin pregnancy. The internal examination should be done. Internal examination should be done after the rupture of the membrane to exclude the cord prolapse. Cord prolapse तो नहीं हो रहा है. If the uterine contraction becomes sluggish, the oxytocin infusion is started. If not contraindicated, to prevent PPH, intravenous methergin 2 mg should be given with the delivery of the anterior shoulder. डिलीवर होने के साथ ही इंट्रावेनस मेथर्जिन 0.2 mg दे देना है पोस्टमार्टम हेमरेज प्रिवेंट करने के लिए. वन मस्ट रिमेन vigilant following the birth of the baby for the retained placenta and the PPH and the shock. Baby should be thoroughly examined for any congenital anomaly. ये तो हो गया हमारा क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस. इसके बाद हमारा आता है एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस. एक्सट्रीम केसेस में होता है, बहुत एक्सट्रीम है. ऑनसेट एक्यूट होता है, द फ्लूइड एक्यूमुलेट्स विद इन फ्यू डेज, यूजुअली अकर बिफोर 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. 20 वीक्स से पहले होता है. यूजुअली एसोसिएटेड विद द मोनोजाइगोटिक ट्विंस विद TTS or chorioangiocarbinoma of the placenta. Features of acute abdomen predominate such as abdominal pain, nausea and vomiting. The patients look ill. Patient बीमार दिखता है. Absence of the feature of the shock, edema of the legs and the presence of the other associated features of the preeclampsia. Abdomen is hugely enlarged, more than period of the amenorrhea, and the wall is tense.
with the shiny skin and the fluid thrill is present. Fetal parts cannot be felt normal, but the fetal heart sound is audible, and the internal examination revealed taking above the cervix, even the dilatation of the os through which the bulging membrane are felt. Sonography shows multiple fetuses at the time. Fetal abnormalities, most often spontaneous abortion, occurs in case with the severe TTS. Repetitive amino reduction until the AFI is normal may improve the perinatal outcome. Laser ablation may occur cause TTS, whereas amino reduction only treats the symptoms. ठीक है. ओलाइगोहाइड्रोएमिनोस इस ये हो गया हमारा पॉलीहाइड्रोएमिनोस का यहाँ पे ख़त्म. ठीक, एक्यूट एंड क्रोनिक. ठीक, ये हो गया पॉलीहाइड्रोएमिनोस. फिर एक होता है ओलाइगोहाइड्रोएमिनोस. ओलाइगोहाइड्रोएमिनोस बेसिकली रेयर कंडीशन होती है वेयर लिक्वर एमिनाइड डेफिशिएंट हो जाता है इन अमाउंट लेस देन 200 ml एट द टॉप. Sonographically, it is defined when the maximum vertical pocket of the liquor is less than 2 cm. Maximum vertical pocket of the liquor less than 2 cm हो रही है when the amniotic fluid index is less than 5 cm, less than 5 percentile with the FI less than 5 cm, below 5 percentile or more than 24 cm. Above 95% were considered abnormal at the gestation from 28 to 40 weeks. Absence of any measurable pocket of the amniotic fluid is defined as anhydroamnios. AFI between the 5 to 8 is termed as borderline amniotic fluid index or borderline oligohydramnia. फीटल कंडीशंस एटियोलॉजी हो सकती है फीटल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एनॉमलीज हो गया, रीनल एजेनेसिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी हो गया, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो गया, ड्रग्स हो गई, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर हो गया, एस इनहिबिटर हो गया, पोस्ट मैच्योरिटी IUGR हो गया, एमनियोनोडोसम हो गया, फेलियर ऑफ द सिक्रीशन बाय द सेल्स ऑफ द एमनियन कवरिंग द प्लासेंटा, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो गया, यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशियंसी हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, इडियोपैथी हो गया, यूट्राइन साइज, जो यूट्रस का साइज होता है मच स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ द एमेनोरिया, लेस फ्यूटल मूवमेंट, यूट्रस इज फुल ऑफ फीटस बिकॉज द स्कैंटी लिक्वर, मैल प्रेजेंटेशन ब्रीच कॉमन होता है, एविडेंस ऑफ द इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द फीटस. सोनोग्राफी डायग्नोसिस मेड व्हेन लार्जेस्ट लिक्वर पूल लेस देन 2 cm होता है. अल्ट्रासाउंड विजुअलाइजेशन इज डन following the amino infusion of 300 ml of the warm saline solution. Visualization of the normal filling and emptying of the fetal and the bladder. Essential rule out the uterine tract abnormalities and the oligohydramnios with the fetal symmetric growth restriction is associated with the increased chromosomal abnormalities. Complications क्या हो सकते हैं? fetus के abortion हो सकता है, deformity due to interamniotic adhesion due to compression, deformities including the alteration in the shape of the skull, wry neck and the club foot, or even amputation of the limb, and the fetal pulmonary hypoplasia may be the cause or the effect. Cord compression हो गया, high fetal mortality हो गया, maternal में तुम्हारे पास prolonged labor हो गया due to inertia, increased operative interference due to malpresentation. Some effect may lead to increased maternal morbidity हो गया. ठीक है. Presence of the fetal congenital malformation needs referral to the fetal medicine unit. When decision for the delivery is made, it should be done irrespective of the period of the gestation. Isolated oligohydramnios in the third trimester with the normal fetus may be managed conservatively. Oral administration of the water increases amniotic fluid volume. In the labor, cord compression is common. An amino infusion that is prophylactic or therapeutic for the meconium liquor is found to improve the neonatal outcome. ठीक है. Hence, this completes the topic.